no non-coding part. All of it contains the code, and all the code is read one after the other in continuation, and then protein is synthesized. So from pre-messenger RNA, the non-coding part, that is introns, are chopped off, and all the exons, which are the coding part, which contain the code for protein synthesis, again joined together. So the messenger RNA or mature messenger RNA formed from pre-messenger RNA does not have any unrequired portion. All the portion has the code for protein synthesis which will be read continuously one after the other, and protein will be synthesized in the translation step. Now an alternative splicing is also given. In this there are, so actually ideal way is splicing like it is shown in figure 5. So figure 5 splicing is the ideal one, where all the introns are chopped off and the exons are then joined together so that the messenger RNA has all the code for the protein synthesis. But sometimes alternative splicing can also take place, where maybe some part of intron is left, or it is not the ideal way of splicing, but it is alternative splicing. In alternative splicing, individual exons are either spliced or included, giving rise to several different possible messenger RNA products. अब ये बोलोगे कि हर मैसेंजर आरएनए पे पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस का कोड होता है जो कि ट्रू है, और उसमें अगर जैसे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जब हुई तो फिर कोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि कोड तो एक लाइन से पढ़ा जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक मैसेंजर आरएनए को एक लाइन, एक तरफ से एक एंड से पढ़ना शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक एकदम कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी। तो अब अगर स्प्लाइसिंग में कोई ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, उसके कोड का जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो जाएगा। तो प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन वो प्रोटीन जो ओरिजिनली, जो एक्चुअली आइडियली जो प्रोटीन बनना था, क्या वो वैसा होगा? तो यूजुअली ये होता है कि क्योंकि कोड तो मिला जुला के सेम है, तो प्रोटीन तो सेम ही अमीनो एसिड वाला बनेगा, लेकिन सीक्वेंस में, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में सीक्वेंस में हियर एंड देयर थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, और उन चेंजेस की वजह से ही जो डिफरेंट प्रोटीन्स के टाइप 1, टाइप 2 या डिफरेंट आइसोफॉर्म्स जिनको कहते हैं, डिफरेंट आइसोफॉर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं। So it's more or less the same protein, but at certain places there is a slight difference in sequence. So protein, overall the protein is the same because it contains the same amino acids, and the sequence is also, for the majority of the part, the sequence is also the same. But at certain places there may be some differences in the sequence because of the alternative splicing. And like this, when proteins are formed, then they are actually different types of protein or different isoforms of the same protein. तो प्रोटीन मतलब सेम ही बनेगा, जैसे कि सपोज 80 प्रोटीन बनना था, 80 के दो सब टाइप होते हैं, 81, 82।
दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस होता है सीक्वेंस में। बाकी ओवरऑल जो है वो जैसे जो प्रोटीन का जो वेट है वो भी सेम होगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वगैरह भी सेम होगा, तो उस तरीके से ओवरऑल तो सेम होगा। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 में कहीं कहीं पे एट सर्टेन प्लेसेस सीक्वेंस डिफरेंट होगा। मोर और लेस तो सीक्वेंस भी सेम होगा। हो सकता है बहुत दूर तक सीक्वेंस जो है सब सेम ही हो, कहीं पे कुछ 5-6 रेसिड्यू का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो सकता है, फिर अगेन कहीं 2-3 रेसिड्यू का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो सकता है। सो मोर और लेस दे आर सिमिलर, so like 75% is similar, but only very little, maybe here and there, maybe less than 5%, 2%, 1%, here and there are some minor differences in the sequence. And when such proteins are created, they are the different isoforms or the different types of the same protein. So different types and subtypes of proteins are created in our body due to this alternative splicing, which is splicing of pre-messenger RNA, which carries the code for protein synthesis during the second step of transcription. So alternative splicing, it says in alternative splicing, individual exons are either spliced or included, giving rise to several different possible messenger RNA products. Each messenger RNA product codes for a different protein isoform. These protein isoforms differ in their peptide. अब वापस ऊपर जाओ, एकदम सेम फाइल में ऊपर सेकेंड पेज पे। So they are same in protein sequence and therefore their biological activity. तो 70% जैसे अगर सीक्वेंस भी सेम है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत मिलती जुलती होती है। इसीलिए जो डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होते हैं प्रोटीन्स के, उनका फंक्शन भी बहुत मिलता जुलता होता है, सीक्वेंस भी बहुत मिलता जुलता होता है, खाली एक आध जगह पे थोड़ा सा सीक्वेंस में ऑल्टरेशन होता है, which is because of alternative splicing at the time of formation of messenger RNA. It is estimated that up to 60% of human gene products undergo alternative splicing. Several different mechanisms of alternative splicing are known, two of which are illustrated in figure 6. तो अगर उस तरीके से जैसे होनी चाहिए स्प्लाइसिंग की, सारे इंट्रॉन हट जाएं और जितने एक्सॉन हैं वो सब आपस में जुड़ जाएं, तो वो तो आइडियल स्प्लाइसिंग है। लेकिन आइडियल से हट के जो है करीब 60% केसेस में ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। और ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में जो है वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो सकती है, कुछ स्पेसिफाई तो कर नहीं रहे, किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे ये कुछ स्प्लाइसिंग नीचे दी हैं, अब इसमें जो है इन्होंने इंट्रॉन एक्सॉन मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिया है, खाली जो है वो जैसे एक केस ऊपर दिया है फिर एक केस नीचे दिया, दो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग वाले दिए हैं। इसमें टॉप के लिए लिखा है कि अ कैसेट एक्सॉन कैन बी आइदर इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल आरएनए। ये दोनों जो है वो टॉप वाला केस है, और जो बॉटम वाला केस है वो टू कैसेट एक्सॉन्स में बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये जो है वो बॉटम वाला केस है। अब इसको समझाते हैं। अब जैसे
इसमें जो पहला केस है, ठीक है, इसमें जो जिस तरीके से बनाया गया है वो बता दें। उसमें ऐसे बनाया है कि जो एकदम लाइट वाइट वाला जो पोर्शन है, एक तो पहले ध्यान से देखो, दूर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा एक रेड है एक वाइट है। तीन हिस्से दिखाए कैसेट एक्सॉन के, एक डार्क रेड, बीच में हल्का सा पिंकिश, और लेफ्ट मोस्ट जो है वो व्हाइट वाला। ठीक है, तीन हिस्से हैं इसमें। जो पिंक और रेड वाले हैं ये दोनों एक्सॉन है, और जो व्हाइट वाला है वो इंट्रॉन है। तो एक तरीका स्प्लाइसिंग का ये है कि जस्ट दोनों एक्सॉन जो हैं वो इंक्लूडेड है, और दूसरा जो अल्टरनेटिव है उसमें एक एक्सॉन जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, so one way of alternative splicing is that exon maybe all the exons may be included or excluded, जो ये टॉप केस में दिखाया है। एक में दो एक्सॉन है, दोनों इंक्लूडेड है, दूसरे में एक जो है एक्सक्लूडेड है और एक इंक्लूडेड है। नीचे वाला जो है बॉटम वाला केस, इसमें जो है वो रेड और व्हाइट वाले इंट्रॉन है, और जो येलो और मस्टर्ड वाले ये एक्सॉन है, उस पे कैसेट एक्सॉन्स लिखा भी है। अब इसमें दो जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग दिखाई है कि मतलब एक में एक एक्सॉन जा रहा है, एक में एक एक्सॉन जा रहा है। एक अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से येलो वाला गया, दूसरे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से मस्टर्ड वाला गया। तो इसमें वो दिखाया है कि अ कैसेट एक्सॉन मे बी इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड टॉप वाला, वो तो फर्स्ट केस था। टू कैसेट एक्सॉन्स मे बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है। मतलब क्योंकि इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों एक्सॉन अलग अलग ही हो गए स्प्लाइसिंग में। मतलब एक कोई भी जो है दूसरे को इंक्लूड नहीं कर रहा है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों जो है अलग अलग ही जाएंगे। ये दिस इज वन वे ऑफ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। और जो टॉप वाला जो केस है उसमें ये मान के चल रहे हैं कि इट मे बी इंक्लूसिव मे बी एक्सक्लूसिव। तो उसमें एक केस में इंक्लूसिव दिखाया है और दूसरे में एक्सक्लूसिव दिखाया है। तो इस तरीके से ये जो है मतलब तीन तरह का ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यहाँ पे फिगर 6 में दिखाया है। ऊपर वाला ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, उसमें दो केस दिखाए हैं। एक में जो है इंक्लूसिव है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, जो लेफ्ट साइड वाला है जिसमें पिंक और रेड दोनों जा रहे हैं, और दूसरा है एक्सक्लूसिव वाला जिसमें जो है केवल रेड वाला आया है। फिर नीचे जो केस दिखाया है थर्ड तरीका ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का, उसमें दोनों एक्सॉन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि वो साथ में किसी में नहीं जाएंगे, वो दोनों में अलग अलग जाते हैं। एक एक्सॉन में एक मैसेंजर आरएनए में, और दूसरा एक्सॉन दूसरे मैसेंजर आरएनए में। तो ये तीनों अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के एग्जाम्पल हैं when there are more than one exons. फिर दिया alternative splicing contributes to protein diversity. वो तो है ही है, क्योंकि जितने तरह का स्प्लाइसिंग होगी तो मैसेंजर आरएनए वही जरा से डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ कोड वाले बनेंगे। अब जब सीक्वेंस में डिफरेंस होगा तो रिजल्टिंग प्रोटीन का सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा, लेकिन लार्जली सेम होगा, कहीं कहीं पे डिफरेंट होगा। सो लाइक 5% 10% कहीं पे कुछ डिफरेंसेस होंगे, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो इसीलिए वो जो है एक ही प्रोटीन के डिफरेंट आइसोफॉर्म कहलाएंगे या डिफरेंट सब टाइप कहलाएंगे।
a single gene transcript, that is RNA, can have thousands of different splicing patterns and will therefore code for thousands of different proteins. A diverse proteome is generated from a relatively limited genome. Splicing is important in genetic regulation. Alteration of the splicing pattern in response to cellular conditions changes protein expression. अब वो तो है ही है, मतलब स्प्लाइसिंग वाला ये जो चक्कर है, इससे प्रोटीन एक्सप्रेशन गवर्न हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्प्लाइस होगा वही वाला प्रोटीन जो है वो बनेगा। तो जैसे एक ही घर में 2-3 इंडिविजुअल सब जो हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी की वजह से सबका जेनेटिक एक्सप्रेशन, जेनेटिक प्रोटीन एक्सप्रेशन हर एक की बॉडी में अलग अलग होता है, क्योंकि हजारों तरह की स्प्लाइसिंग हो सकती है। तो किसी के में कैसा प्रोटीन का एक्सप्रेशन आ रहा है, किसी के में कैसा प्रोटीन का एक्सप्रेशन आ रहा है। So the alteration of splicing pattern, and with this alteration of splicing pattern is because of the cellular conditions. जैसे सबकी सेलुलर कंडीशन घर में अलग अलग होती है, तो हर एक के में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोटीन एक्सप्रेशन में, और उसी की वजह से और भी चीजें होती हैं कि लाइक एक को एक ड्रग सूट करती है, दूसरे को नहीं करती, दूसरे को कुछ उससे दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत है, किसी को ज्यादा फायदा करती, किसी को कम फायदा करती है, किसी को जो है ज्यादा दिक्कत हो रही है, किसी को कम हो रही है। सो ऑल दीज डिफरेंसेस are because the protein expressions etc. in our body are different, because we all have our own cellular conditions. सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है, सबका सेलुलर कंडीशन अलग अलग है, जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से। Perhaps not surprisingly, abnormal splicing patterns can lead to disease states including cancer. अभी वो भी इसी वजह से होता है, जैसे कैंसर वाला बहुत जेनेटिक, उसमें जेनेटिक एस्पेक्ट भी काफी रहता है, इसीलिए जो है किसी को हो जाता है तो फिर उस समय जो है पूरी हिस्ट्री पूछते हैं कि घर में किसी को था, नहीं था, किस जनरेशन में था, फिर नेक्स्ट में था, नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा जेनेटिक वाला एस्पेक्ट जो है वो आता है। और बहुत सारी डिजीजेस में भी ये जेनेटिक वाला जो है वो आता है। अब उसका डिजीज कंडीशन जो है ये जेनेटिक वाले केसेस में जो है स्प्लाइसिंग पैटर्न की वजह से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। तो इसलिए जैसे जेनेटिक वाला आता तो है, लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा, लाइक दिस। फॉर इंस्टेंस, अगर घर में लोगों को शुगर है तो लाइकलीहुड रहता है कि बच्चों को होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन को होगा, लेकिन जो है उसका जो सिवियरिटी है वो सब चेंज होता रहता है। और इसी तरीके से जैसे कि क्योंकि प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता जाता है, म्यूटेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो जैसे बताया डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसमें भी फिडेलिटी वाला एस्पेक्ट आता है, फिर मिस्टेक्स इन डीएनए, प्रूफ रीडिंग, वो सब आता है। ये सारी चीजें मिला जुला के जो है वही जेनेटिक्स वाला हिसाब है कि all this actually controls the the mutations, the differences in individuals in the same family, etc. So because of this, and like I told during replication also, there may be good mutations, there may be bad mutations, and so similarly over here, because of the
different alternative splicing at the time of protein synthesis. In the same family, different individuals may have different expression of proteins, and sometimes because of the alternative splicing, if it becomes too abnormal splicing, then it can also lead to some particular disease, and that includes cancer also. Now, very briefly, because it is relevant to HIV and also relevant to this coronavirus, I told you not only transcription, there is reverse transcription. तो ये जो सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग डीएनए से आरएनए बनना, जो ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, कुछ वायरसेस में इसका उल्टा भी होता है. ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस में भी जो है सीधा ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे हम लोगों में होता है. और ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से आरएनए बनना और फिर आगे उस आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन होना. लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं कि उनमें डीएनए से आरएनए के बजाय उल्टा ही चलता है, आरएनए टू डीएनए, आरएनए से डीएनए बनता है. और इसको जानने की इम्पोर्टेंस वही है कि मैंने दोनों डेडली डिजीजेस का नाम लिया. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से समस्या इतनी ज़्यादा इस वजह से होती है कि जब वायरस या बैक्टीरिया में आरएनए से डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी होती है और उसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने को रेप्लिकेट करने के लिए, तो ह्यूमन जो है वो बड़ा अच्छा टारगेट होता है, क्योंकि ह्यूमन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. और जब वायरस और बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल से डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल बनाने लगे, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो उसके लिए होस्ट में घुसना और होस्ट के साथ में इंटीग्रेट हो जाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. और जब वायरस भी अपने रेप्लिकेशन के लिए डबल स्ट्रैंडेड बनाने लगता है तो वो धीमे से वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल में कब इंटीग्रेट हो जाता है हमको पता ही नहीं लगता, और सीधे इन्फेक्शन हो जाता है. और फिर जब वो जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट हो जाता है तो उसको मतलब एक्चुअली वो उस टाइप का इन्फेक्शन नहीं है कि पेट में हो गया तो दवा खा लिया तो निकल गया, तो इसीलिए वो फिर निकलता ही नहीं, क्योंकि वो तो जेनेटिक उसमें इंटीग्रेट हो गया, तो निकलेगा कहाँ से, निकलने का सवाल ही नहीं उठता. और फिर हमको वो वाली ड्रग्स देनी पड़ती हैं जिनका टारगेट डीएनए होता है, और उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो वो वाली ड्रग्स होती हैं जिनका टारगेट हमारा डीएनए होता है, वो जब हमारे अंदर जाती हैं तो उनके लिए ये समझ पाना कि हमारी कौन सी सेल डिजीज्ड है और कौन सी सेल नॉर्मल है, वही सबसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन. So actually a lot of cell biology work that is being done nowadays is to simply understand the changes in the shape and the behavior and the motility behavior of the cancerous cells. Because once these types of viruses etc. integrate in our genetic material, and when we take a drug which has the target human DNA, it is very difficult to identify which is disease cell and which is normal cell,
and then the drug goes and works everywhere and creates what we call as cytotoxicity. कि मतलब फिर हम लोग को वो ड्रग खानी पड़ती है और वो ड्रग से फिर जो है साइटोटॉक्सिसिटी का मीनिंग ही ये होता है कि जब जो है वो डिजीज सेल को मारने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी मारने लगती है दवाई, तो वो साइटोटॉक्सिसिटी कहलाती है। मतलब हमको दवा की ही टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इस सब पर्सपेक्टिव में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? इट इज actually just the reverse process of transcription. That is, it is the normal transcription is formation of DNA, formation of RNA from DNA, messenger RNA from DNA, and reverse transcription is just the reverse, that is formation of DNA from RNA. And some viruses have this capability, like it's written here. This process catalyzed by reverse transcriptase enzymes allows retroviruses, इनको retroviruses बोलते हैं क्योंकि जैसे उल्टा चल रहे हैं तो उसलिए ये वर्ड रेट्रो लगा दिया जाता है इन वायरसेस के आगे कि इनको नॉर्मल वायरसेस के बजाय हम लोग रेट्रोवायरसेस बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा उल्टा काम करते हैं। इंक्लूडिंग दी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV वायरस, to use RNA as their genetic material. Reverse transcriptase enzymes have also found applications in biotech, allowing scientists to convert RNA to DNA for techniques such as polymerase chain reaction. इसीलिए ये polymerase chain reaction को यूज करते हैं उसके डिटेक्शन के लिए, कोविड के इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए, जिसमें कि आरएनए से डीएनए बनाते हैं और उससे फिर जो है देखते हैं कि कितना जो है वो वायरस का लोड है। तो अदरवाइज बायोटेक में भी जैसे मैंने पहले बताया था, बायोटेक वाले जो हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अलग अलग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और ऑलमोस्ट हर बायोटेक लैब में जैसे यूनिवर्सिटी में भी एक PCR इक्विपमेंट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इक्विपमेंट होता है। अब बहुत ही ब्रीफ में अगर कहें कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इक्विपमेंट क्या करता है, वो आरएनए से डीएनए बनाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल बनाता है। इट्स अ टेक्निक टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए just like these retroviruses, and to detect the presence of these viruses, then you do RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction. So ये इतने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के दोनों स्टेप हुए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब सारा कुछ इसमें दिया तो हुआ है PDF में, तो इसमें से तुम लोग अपने आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिख लोगे। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसमें आपको वही देना होगा। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA from DNA, and this transcription occurs in 2 steps. First is the formation of pre-messenger RNA from DNA, and the second step is the splicing and the formation of mature RNA, mature messenger RNA.
अब किसी को ये ट्रांसक्रिप्शन वाला लिखने में प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ लिखवाया था इसका क्या? नहीं लिखवाया था ट्रांसक्रिप्शन वाला। याद नहीं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, पर इसमें यही 2 स्टेप होते हैं। और अब जो है वो ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन के बाद में फिर जेनेटिक कोड आएगा। तो इसको तुम लोग पढ़ लेना, अभी ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेना। फिर अगर और थोड़ा आई थिंक अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में जो है ट्रांसक्रिप्शन लिख लो। ट्रांसक्रिप्शन के दोनों स्टेप 1 2 लिख लो, और डायग्राम तो वो बनेगा ही। एक तो डायग्राम बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में जिसमें वो दिखाया है पार्शियल अनवाइंडिंग और फॉर्मेशन ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए, दैट इज फिगर 4 बनेगा फर्स्ट स्टेप में। और फिर जो है वो फिगर 5 बनेगा सेकेंड स्टेप में, स्प्लाइसिंग वाले में। फिगर 5 बनाना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है जस्ट मेंशन कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी होती है। लेकिन जो फिगर 5 है वो तो मैंडेटरी है। 4 और 5 तो जब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप लिख रहे हो तो फर्स्ट स्टेप में फिगर 4 और सेकंड स्टेप में फिगर 5, ये दोनों बनाना मैंडेटरी है। और ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग 3 टाइप की इसमें दिखाई गई है। अब एक तरह की ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग या 2 या जितना याद रहे, जितना समझ में आए, वो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी दिखाओगे तो और भी अच्छा है, और नहीं दिखाओगे तो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है इतना तो मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसमें क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टेप आएंगे। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए एंड सेकेंड स्टेप formation of messenger RNA by splicing. Now we come to translation. The messenger RNA formed in transcription is transported out of the nucleus. अब जब messenger RNA बन जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होती है, और राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर, सेल के अंदर ही लेकिन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होता है, वहीं पे ट्रांसफर आरएनए काम करता है, वहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो द मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, द सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री. Here it directs protein synthesis. Messenger RNA is not directly involved in protein synthesis. Transfer RNA is required. Transfer RNA is required and it occurs in the ribosome. Ribosomal RNA का क्या काम है वो जो है बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं पता है. What is actually the role of ribosomal RNA, people don't know. But protein synthesis occurs in ribosome, and in ribosome these two are required. Messenger RNA, which is formed inside nucleus, that has to come to ribosome, and the transfer RNA are definitely required to read the code on the messenger RNA. ट्रांसफर आरएनए कोड पढ़ता जाता है और एमाइनो एसिड लाता जाता है जो जुड़ के
प्रोटीन बनता रहता है। The process by which messenger RNA directs protein synthesis with the assistance of transfer RNA is called translation. The ribosome is a very large complex of RNA and protein molecules. Each 3 base stretch of messenger RNA triplet is known as a codon. तो मैसेंजर आरएनए पे जैसे नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं एक के बाद एक, और वो तो जैसे सीक्वेंस लिख रहे थे जो वो हैंड रिटन वाला था, उसमें जैसे सीक्वेंस लिखा हुआ था सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड और फिर प्री मैसेंजर आरएनए। तो जो एक लाइन से पढ़ते हैं तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस एक बार में पढ़े जाते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस एक बार में पढ़ता है ट्रांसफर आरएनए, तो वो ट्रिपलेट पढ़ता है, क्योंकि 3 पढ़ता है मतलब कहते हैं ट्रिपलेट पढ़ता है। और ये ट्रिपलेट जो है ये 3 के पेयर्स जो है ये कोडॉन कहलाते हैं। और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड का कोड होता है, तो मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिला के एक अमाइनो एसिड का कोड होता है। तो 3 पढ़ेगा, एक कोडॉन पढ़ेगा ट्रिपलेट, एक अमाइनो एसिड आएगा, फिर नेक्स्ट 3 पढ़ेगा, एक और अमाइनो एसिड आएगा, फिर नेक्स्ट 3 पढ़ेगा, एक और अमाइनो एसिड आएगा, और फिर ये अमाइनो एसिड आते जाते हैं, इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, वो प्रोटीन का सीक्वेंस बनता जाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है। So ribosome is a very large complex of RNA and protein molecules. Each 3 base stretch of messenger RNA triplet is known as a codon, and one codon contains the information for a specific amino acid. As the messenger RNA passes through the ribosome, each codon interacts with the एंटीकोडॉन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए। जो मतलब पढ़ने का मतलब है कि ट्रांसफर आरएनए पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट ट्रांसफर आरएनए पे रहता है, जिसको कि एंटीकोडॉन कहते हैं। तो वो कोडॉन एंटीकोडॉन के इंटरेक्शन का मतलब ही है कि उसने कोड को पढ़ लिया और फिर दूसरे एंड पे अपने वो अमाइनो एसिड कैरी करता है, उसको वहां पे छोड़ देता है। So each codon interacts with the anticodon of a specific transfer RNA molecule by Watson-Crick base pairing. This transfer RNA molecule carries an amino acid at its 3' terminus, which is incorporated into the growing protein chain. The transfer RNA is then expelled from the ribosome. और ये फिगर 7 shows steps involved in protein synthesis. ये पूरी जो फिगर 7 है ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। अब इसको फर्स्ट उससे स्टार्ट करो। पहला जो बॉक्स बना है नीचे देखो 5' to 3' लाइन बनी है, उस पे मैसेंजर आरएनए लिखा, तो वो लाइन मैसेंजर आरएनए है। 5' एंड से पढ़ना चालू होता है और दूर दूर बनाए हैं, लेकिन इन्होंने कोडॉन बनाए, तो इस मैसेंजर आरएनए पे 3 कोडॉन दिखाए हैं, मतलब 3 ट्रिपलेट दिखाए हैं, AUG, CG, GAGA। अब AUG का कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली हुआ UAC, क्योंकि दोनों आरएनए हैं तो थाइमीन नहीं होगा। एक नीचे वाला मैसेंजर आरएनए है जो लाइन से दिखाया है, और बॉक्स जो है बॉक्स राइबोसोम के लिए बनाया है कि दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन राइबोसोम, और जो ऊपर टी शेप्ड बनाया है वो ट्रांसफर आरएनए है, और उस टी शेप में नीचे उसके एंटीकोडॉन बनाया है। वो एंटीकोडॉन जो है जो कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे ट्रिपलेट है उसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी से तो पहचानता है वो। और ऊपर जो है वो
ट्रांसफर आरएनए का 3 प्राइम एंड है और उस 3 प्राइम एंड पे वो मिथियोनिन लिए, क्योंकि अभी जेनेटिक कोड वाली टेबल बताएंगे तो उसमें AUG जो कोडॉन पे है, एंटीकोडॉन पे नहीं। अब ये ध्यान रखना, जो कोडॉन AUG है, दिस AUG इज द जेनेटिक कोड फॉर मिथियोनिन। तो ट्रांसफर आरएनए जिसपे AUG का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन है वो आया, और वो एंटीकोडॉन के साथ में हमेशा ऊपर वो मिथियोनिन कैरी करेगा। सो दिस ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर मिथियोनिन। इस ट्रांसफर आरएनए का काम ये हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फिगर में दिखाया है कि नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए है, क्योंकि एक ट्रांसफर आरएनए पे खाली एक अमाइनो एसिड आता है। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आया, उस पे नेक्स्ट कोडॉन का एंटीकोडॉन है। नेक्स्ट कोडॉन था CGG। तो जो ट्रांसफर आरएनए आया है उस पे एंटीकोडॉन है GCC, और CGG जो है वो एलेनिन का जेनेटिक कोड है। तो जो नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए आया है वो अपने साथ में एलेनिन लेके आया है। फिर एरो से A हो गया, B हो गया, फिर ये तीसरे डब्बे पे आओ तो ये पहले वाले दोनों ट्रांसफर आरएनए लगे हुए, मिथियोनिन, एक पे मिथियोनिन आया, दूसरे पे एलेनिन आया, ठीक है। और नीचे कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में डॉटेड लाइन बनी है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट अभी बाहर है। अब जो है ये ऊपर जो अमीनो एसिड आए ये आपस में जुड़ गए और ट्रांसफर आरएनए का काम हो गया। ट्रांसफर आरएनए ये बाहर निकलेंगे, तब नेक्स्ट थर्ड ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसपे थर्ड कोडॉन का जो है कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड होगा। तो अब CD के बाद फिर नेक्स्ट डिब्बे पे आओ तो उसमें अब दिखाया है कि पहला वाला ट्रांसफर आरएनए जो मिथियोनिन लेके आया था वो बाहर निकल गया, मिथियोनिन अंदर है, मिथियोनिन नेक्स्ट वाले एलेनिन जो आया था उससे अटैच हो गया, और फिर तीसरा ट्रांसफर आरएनए आया जिसपे AGA का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है अमीनो एसिड है। AGA जो है वो सीरीन का कोड है, तो वो सीरीन लेके आ रहा है, और उस पे जो एंटीकोडॉन है वो AGA का कॉम्प्लीमेंट्री है UCU, A का कॉम्प्लीमेंट्री U, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, अगेन A का कॉम्प्लीमेंट्री U। सो UCU उसका एंटीकोडॉन है और ऊपर सीरीन लेके आ रहा है। फिर अब ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ थर्ड कोडॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पहले वाला तो निकल गया, उसका काम हो गया, और मैसेंजर आरएनए भी आगे मूव हो गया। जो वाला कोडॉन पढ़ चुके, जिसका अमीनो एसिड जुड़ चुका, वो दूसरे सिरे से राइबोसोम के बाहर निकल गया, और नेक्स्ट इस तरीके से मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से राइबोसोम में घुसता है और चलता जाता है, और उसका कोड ट्रांसफर आरएनए एक करके पढ़ते जाते हैं और ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में दिखा है मिथियोनिन, एलेनिन, सीरीन सब जुड़ गए, और उसके नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए जा रहा है। इस तरीके से ये ऊपर प्रोटीन जो है वो बढ़ता जाएगा, नीचे मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम तक खिसकता जाएगा, और नेक्स्ट पढ़ के प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहेगा। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इसके नेक्स्ट वाले पेज पे फिर ट्रांसफर आरएनए का डिटेल में ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर खाली ये तुम्हारी जानकारी के लिए है, ये कभी आता नहीं है कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में बताओ, क्योंकि इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो किस ट्रांसफर आरएनए का रोल क्या है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसका काम क्या है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
फिर भी आप देख सकते हो इसमें ये जो डिफरेंट जो निकले रहते हैं ये इसके डिफरेंट आर्म्स होते हैं। तो जो 3 प्राइम एंड जो ऊपर जहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ा रहता है वो 3 प्राइम एंड है, उसको अमाइनो एसिड आर्म भी कहते हैं। और जो टी बनाने वाले जो राइट और लेफ्ट में दोनों आर्म है वो एक DHU आर्म और एक TC आर्म है, ठीक है। और एक ये एक्स्ट्रा आर्म है जो सब में नहीं होता है, जैसे उधर फिगर में ये एक्स्ट्रा आर्म नहीं बने हुए थे। और ये नीचे वाला आर्म जिसपे एंटीकोडॉन रहता है उसको एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं। तो बेसिकली एक एंटीकोडॉन आर्म है और एक अमाइनो एसिड आर्म है, और जिससे हॉरिजॉन्टल वाला जिससे टी बनता है वो एक DHU आर्म और एक TC आर्म, TC आर्म है। तो ये स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर अगर जो ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर आ भी जाए तो उसमें जैसे ऊपर वाले फिगर में जिसमें ट्रांसलेशन समझाया हुआ है उस तरीके से एक छोटा सा बना के नीचे वाले इसको नीचे वाला जो गोल गोल फ्लैट में जो दिखा है उस पे और उस पे 3 बेसेस का एंटीकोडॉन बना के उसको एंटीकोडॉन लेबल कर दो और ऊपर और वहाँ 5 प्राइम एंड लिख दो, और ऊपर वाले एंड को 3 प्राइम एंड लिख दो और वहाँ पे एक अमाइनो एसिड बना दो, और ये बीच में ये ऐसे राइट और लेफ्ट में 2 आर्म बना दो। उनका नाम चाहे याद रहे चाहे ना रहे, अगर किसी वजह से ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर आ भी जाए तो जैसे ये इसमें ट्रांसलेशन वाली फिगर 7 में बना हुआ है खाली ट्रांसफर RNA वो वैसा बना के, और जो मैंने बताया 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एंटीकोडॉन आर्म और अमाइनो एसिड आर्म इतना जो है लेबल कर देना और उसी को लिख देना, और ट्रांसफर RNA का रोल लिख देना और लिख देना कि इट इज टी शेप्ड, इसमें ये 4 आर्म होते हैं और एंड सम ट्रांसफर RNAs also have an एक्स्ट्रा आर्म। इतना इतना लिख दोगे तब भी जो है वो आधे से ज्यादा जो है जो मेन चीज है ट्रांसफर RNA की वो हो गया। तो उसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर नहीं याद है, बाकी इसमें तो ये बहुत डिटेल में बना है, उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वो भी दिए हुए हैं वॉबल बेसेस और उस टाइप की चीजें दी हुई हैं। और ये जो एक्चुअली जो ऐसे जो सीढ़ी की तरह जो बना रखे हैं ये बेस पेयर्स दिखाए हुए हैं, नीचे जैसे लिखा हुआ है उस पर कोई स्पेसिफिक लेबलिंग नहीं करी है कि कौन सा बेस पेयर है, लेकिन बेसिकली दे आर ऑल बेस पेयर्स जिनसे कि आर्म बन रहे हैं। पर वो सब वही जैसे बताया उसको मतलब वही जैसे ऊपर वाले फिगर 7 में बनाया हुआ है, मतलब वो ट्यूब की तरह बनाना है, जस्ट सिंगल लाइन की तरह नहीं बनाना है, यू नो व्हाट आई मीन, सिंगल लाइन की तरह नहीं बनाना है। ये जैसे इसमें बना है मतलब पाइप की तरह ये ऐसे और उसको टी शेप में बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें बेस पेयर होते हैं जैसे कि नीचे डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बना है। तो यू डोंट ड्रॉ अ सिंगल लाइन बट यू ड्रॉ यू नो डबल लाइन टी, so not just a single line T but a double line T, because the arms contain base pairs, and then you label 5 prime 3 prime amino acid arm and the anticodon arm, and if you want to be more specific then you can just show, because you draw double line tube like T, so then you can just show जैसे इसमें बनाए ऐसे base pairs along the arms and not at the ending of the arm. Ending of the arm जैसे गोल गोल होता है वहां पे बेस पेयर नहीं होते, जैसे डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बना है तो गोल गोल छोड़ के बाकी आर्म में ऐसे बेस पेयर दिखा सकते हो। तो हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बता रहे ट्रांसफर RNA का, ठीक है। और इसमें जो है वो
इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर आरएनए से एमाइनो एसिड जो है वो कैसे निकल के ग्रोइंग प्रोटीन चेन पे जाता है, ये एक्चुअली फिगर 9 में दिखाया है। Reaction of the growing polypeptide chain with the 3' end of the charge transfer RNA. The amino acid is transferred from transfer RNA to the protein. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बनाया ऐसे है तो तुमको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। वो ट्रांसफर आरएनए का एक्चुअली ये 3' एंड बनाया हुआ है, वो भी उल्टा। तो 3' एंड पे अमाइनो एसिड कैरी करता है, वही 3' एंड पे ये अमाइनो एसिड दिखाया है। और फिर ये अमाइनो एसिड कैसे ग्रोइंग प्रोटीन चेन में जा रहा है वो दिखाया है कि ग्रोइंग प्रोटीन चेन के साथ में ये कैसे ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है और एमाइनो एसिड जो है ये ट्रांसफर आरएनए को छोड़ के उस पे चला जाता है। उसका डिटेल ये फिगर 9 में शो किया है। Again, that is actually not very important. It's a part of translation, of course, but not very important to show in this detail. अभी आज के लिए मेरा जो है जस्ट सजेशन है। आगे तो फिर ये जेनेटिक कोड वाला लास्ट चीज है जो मुझे करानी है। फिर जेनेटिक कोड और ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इकट्ठा कराएंगे क्योंकि उनको अलग अलग कराना संभव नहीं, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, ट्रांसलेशन करा दिया। फिर जो जेनेटिक कोड वाली टेबल, उसमें जस्ट टेबल पढ़ना बताना है, जेनेटिक कोड वाली टेबल पढ़ना बता देंगे। उसके बाद में तब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के क्वेश्चन कराएंगे जिसमें जेनेटिक कोड वाली टेबल का यूज आपको करना होगा। अब इसमें एक सजेशन तो ये है कि पेज 6 पे जो जेनेटिक कोड की टेबल दी हुई है, इसका जो है या तो प्रिंट आउट होना चाहिए क्योंकि कितनी चीजें मोबाइल पे खोल के कैसे आगे वाला समझोगे, वही थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। तो या तो ये जेनेटिक कोड वाली टेबल जो पेज 6 पे दी है या तो उसको प्रिंट कर लो, या फिर जो है वो हजारों सेम टेबल जो है वो बहुत तरीके से नेट पे दी हुई है। कोई भी एक जेनेटिक कोड की टेबल प्रिंट करके नेक्स्ट क्लास के पहले आप रखना। और ट्यूसडे को हम इसका क्लास नहीं लेंगे क्योंकि ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली हम आउट ऑफ स्टेशन है, तो मंडे को कंफर्म कर देंगे। तो फिर ट्यूसडे के बजाय फिर थर्सडे को लेंगे। तब तक जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो कराया है वो मेरा वही सजेशन है कि सब लोग अपना अपना ट्रांसक्रिप्शन पूरा लिख लो। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख लो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ऐसे ही जो है एक लॉन्ग आंसर जो है अपने आप जो है लिख लो, व्हाट इज ट्रांसलेशन, डिस्क्राइब ट्रांसलेशन। और उसमें अगर लिखने में कोई दिक्कत आए तो उसको पहले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। फिर लास्ट चीज जेनेटिक कोड करा के तब फिर वो जो न्यूमेरिकल टाइप जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे। ठीक है, ओके। हम जो कोशिश करेंगे कि अब ये वीकेंड में कल जो है तुम लोगों की क्विज चेक कर दें। अभी कर नहीं पाए, हम जल्दी से जल्दी अब नेक्स्ट वीक में हर हालत में जो है दिखा देंगे तुम लोगों की।